Good morning, everybody. As I said in my previous video, that is Archimedes Principle 2, I left this topic. I explained up to this and I just stopped, and today in this topic I am covering the topic. Okay. So here, the floating body, a body is floating in water in a vertical plane like this. So this point is center of gravity of the body, where net weight of the body acts downwards, and this is center of buoyancy. At the center of buoyancy, the weight of that it is the point where upthrust acts. It is the point where weight of the displaced amount of water acts. Okay, so this is the point where upthrust acts. Okay, from this point upthrust, and then so these are along the same line. So body is floating in a vertical plane. But what happens when you just tilt this body like this in this direction? Then the body will get deviated like this initially. When a body get deviated like this, so there are two conditions, in which case body will bring back to its original position, or there may be a chances of a body which may topple and which may just fall down. Okay, so what happens in which case, that we have to discuss. In this case, what happens if the body is just tilted like this, and this is center of gravity and this is center of buoyancy. When a body is just rotated by applying some force, the position of the center of buoyancy changes. If position of the center of buoyancy changes here in such a way that this is the new center of buoyancy position, if I join a line, vertical line passing through the new center of buoyancy, and if this line cuts this initial line at this point, the point where both the lines intersect, this is the initial vertical line. When it gets deviated, this will become the initial line, and this is the new position of the buoyancy. buoyancy यहाँ पे था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो ये buoyancy से मैंने एक ऐसा लाइन ड्रा किया, तो यहाँ पे कट हो गया. तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको मेटा सेंटर बोलते हैं. If this meta center lies above the center of gravity, then what happens? A couple acts on a body in such a way that couple will bring the body back to the original position. Couple tends to bring back the body in the original position. ये रमक डाला देखो, ये बॉडी ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएगा. थोड़ा ऐसा आपने ये भी किया तो ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएगा. लेकिन इस केस में क्या होगा? देखो, अगर आपने एक ऐसा कपल ड्रा किया, शिफ्ट इन बुयांसी ऐसा था कि ये बुयांट पोजीशन का शिफ्ट ऐसा था कि ये जो वर्टिकल लाइन है, देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेटा सेंटर, ये जी से नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है. जो पहले का इनिशियल लाइन और न्यू बुयांट पॉइंट का जो वर्टिकल लाइन, दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहे हैं, उसको मेटा सेंटर बोलते हैं. मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है. तो ऐसा केस में कपल उसके ऊपर एक्ट होगा और वो कपल बॉडी को ले डूबेगा. इट विल नॉट ब्रिंग बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इट विल टॉपल, द बॉडी विल टॉपल. कपल टेंड्स टू टॉपल द फ्लोटिंग बॉडी. वो जो बॉडी फ्लोट हो रहा है वो सीधा गिर जाएगा. इसका एग्जांपल्स देखो आप. एक वुडन प्लैंक है समझो, जैसा एक वुडन प्लैंक रहता ना, उसको ऐसा वर्टिकली अंदर पानी में डाल दो, ये वर्टिकली नहीं ठहरेगा, वो सीधा ऐसा ही फ्लोट होगा. ऑलवेज वुडन प्लैंक फ्लोट्स इन दिस पोजिशन. ओके, हॉरिजॉन्टल पोजीशन. वर्टिकल नहीं खड़ा होगा. क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा और उसके ऊपर एक कपल एक्ट होकर वो ऐसा गिर जाएगा. सिमिलरली बोट में बहुत सारे लोग बैठे हैं. इफ़ ऑल द पर्सन सिटिंग इन अ बोट, इफ दे स्टैंड्स अप, सडनली व्हाट हैपन्स? बोट विल टॉपल लाइक दिस. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिए. मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रहा तो कपल उसको वापस लाएगा. इट विल ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. अगर ये मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो टॉपल हो जाएगा, गिर जाएगा. So let us solve numericals on Archimedes principle. This is our first numerical. So as I already told you about specific gravity and relative density, read the problem first. उसके बाद write the given quantity, then select the formula, do few calculation, mathematics यूज़ करो, थोड़ा कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा. तो पहले क्या करो? रीड द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को ऐसा पढ़ना चाहिए. ये बॉडी वेज, एक बॉडी है, वो वेट कितना कर रहा है? 160 ग्राम इन एयर. तो इसका मतलब गिवन क्वांटिटी आप लिखते जाओ जैसा आपने फार्मूला बनाया. वेट इन एयर कितना है? 160 ग्राम. उसके बाद 130 ग्राम इन वाटर, वही बॉडी को पानी में डुबा है तो वेट इन वाटर कितना आ रहा है? 130 ग्राम. एंड 136 ग्राम इन ऑयल. कौन सा एक ऑयल में अगर इसको डुबा दिया तो इसका वेट आ रहा 136 ग्राम. सवाल पूछ रहा व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल. मैं आपको फार्मूला क्या बताया? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला आप सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया था.
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू वेट लॉस्ट बाय द बॉडी इन ऑयल डिवाइडेड बाय वेट लॉस्ट बाय द बॉडी इन वाटर। तो वेट लॉस्ट बाय द बॉडी इन ऑयल बोले तो आप कैसे लिखोगे, वेट इन एयर माइनस वेट इन ऑयल, वेट इन एयर माइनस वेट इन ऑयल डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये फार्मूला लगा आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। तो वेट इन एयर कितना है, वेट इन एयर इज 160 माइनस वेट इन ऑयल कितना है 136 डिवाइड बाय वेट इन एयर कितना है फिर से 160 माइनस वेट इन वाटर कितना है 130। तो माइनस कर दो आपको आंसर आ जाएगा, ये 130 है। तो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज 60 माइनस 36 कितना होगा 24, राइट। तो 60 माइनस 34 कितना होगा 24, देखो आप। और ये 60 माइनस 30 कितना होगा, ये होगा 30। तो कितना आएगा आपका आंसर, राइट। देखो ये कैसा जाएगा, आप चाहे तो इसको कैसे डिवाइड करोगे आप, इसको 3 10 जा हो जाएगा ये लाइक दिस, 3 8 जा, फिर से इसको डिवाइड करें तो 2 4 2 5, तो इसका मतलब है 4/5 हो गया। 4/5 मीन्स 0.8, 0.8 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो आपका आंसर कितना आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज, तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में 0.8, दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या किया, पहला प्रॉब्लम हमने पढ़ा, साथ ही साथ लिखा। तो जो चाहिए उसका फॉर्मूला लिखा, डाटा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आया। ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को देखिए आप, शायद थोड़ा मैंने बारीक लिखा है टू एडजस्ट विद द बोर्ड, लेकिन मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ते वक्त उस क्वेश्चन को थोड़ा सुनिए। एक आइसबर्ग है, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शियली इमर्स्ड इन सी वाटर। ये सी वाटर है, ये सी वाटर है लाइक दिस। तो इसमें एक आइसबर्ग फ्लोट हो रहा है, वो पार्शियली इमर्स्ड यानी कि थोड़ा ऊपर है और थोड़ा पानी के अंदर है, ऐसा ये आइसबर्ग फ्लोट हो रहा है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, मैं बोला वाटर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर का सिंबल क्या है, गिवन क्वांटिटी लिखो आप। मैंने प्रॉब्लम थ्योरी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था, डेंसिटी ऑफ वाटर का सिंबल है सिग्मा, सिग्मा, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, याद रखिए, फिर बार बार कंफ्यूज नहीं, रो क्या है सिग्मा क्या है। सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर है, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी है। ओके, डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉडी सिंक होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर इक्वल रहेगा तो बॉडी फ्लोट होगा, कैसा, फुल्ली सबमर्ज्ड। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी कम रहेगा तो फ्लोट होगा पार्शियली सबमर्ज्ड। ओके, तो इस तरह से ये डेंसिटी ऑफ सी वाटर है, कितना है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो रहने दो। उसके बाद डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी कौन सा है, आइस ही बॉडी है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है 0.92, वो 3 है, ये 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रहने दीजिए, इतना ही दिया। क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग अबव द लेवल ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी के ऊपर कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है। देखो टोटल वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस है, VI वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर। और ये V0 ले लो आप, ये जो ऊपर है, ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसको आप V0 बोलो, और अंदर जो है वो क्या है VI है। सो V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइस आउटसाइड वाटर, पानी का बाहर है। तो क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम। कभी भी फ्रैक्शन आपको पूछा तो याद रखना, आउटसाइड जो वॉल्यूम है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, वो आपको फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड मिल जाएगा। देखो V0/V पूछा आपको, V0 इज द वॉल्यूम आउटसाइड द सी वाटर, फ्रैक्शन पूछ रहा, इसीलिए V0/V। अगर परसेंटेज पूछा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द सी वाटर। कभी भी फ्रैक्शन में ऐसा ही करना, जो है डिवाइडेड बाय जो टोटल है। ओके, टोटल वॉल्यूम इज V, व्हाट फ्रैक्शन आउटसाइड बोले तो V0 टोटल वॉल्यूम, V0 टोटल वॉल्यूम इंटू 100 परसेंटेज वॉल्यूम। अगर उल्टा पूछा होता, अगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज इनसाइड पूछा होता तो VI/V इंटू 100, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहले हमें तो फार्मूला बनाना होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आप सबको मालूम है, पार्शियल सबमर्ज केस में देखो क्या है, ऐसे केस में क्या रहता, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट रहता,
वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, राइट। वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। और अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट इज वॉल्यूम इनसाइड, क्योंकि पार्शियली सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया। ये मैंने थर्ड केस में फॉर्मूला लिखा था, देखो ये जी तो कैंसिल होगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम इनसाइड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू वी, दिस इज टोटल वॉल्यूम, रो बाई सिग्मा आ जाएगा। ये आ गया आपका वॉल्यूम इनसाइड का फॉर्मूला। लेकिन आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम आउटसाइड चाहिए। याद रखो वॉल्यूम आउटसाइड इज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इनसाइड, क्योंकि ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आउटसाइड है तो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इनसाइड कर दो। सो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इनसाइड क्या है, वॉल्यूम माइनस रो बाई सिग्मा। तो आपका आंसर आ गया, अपने वी कॉमन ले लिया, आपका आंसर आ गया 1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो इसका मतलब वॉल्यूम आउटसाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, देखो वी कर दो तो क्या आ गया 1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो 1 माइनस रो कितना है 0.92, सिग्मा कितना है 3, ओके 0.923। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों ग्राम है ना, वेरी गुड। तो 3 इज एलसीएम, सो 3 माइनस 0.92 तो कितना होगा, देखो 3 माइनस 0.92, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। आप शायद थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, मैं थोड़ा देख के करूँगा तो आपका आंसर आ जाए। इट शुड बी 1.03, मैंने गलत लिखा है, इट शुड बी 1.03, ओके इट शुड बी 1.03, दिस शुड बी 1.03, ओके डाटा में मैंने गलत लिखा है, दिस शुड बी 1.03। तो क्या होगा ये 1.03 माइनस 0.92 डिवाइड बाई 1.03, तो इस टोटल क्या हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके किया तो आपका आंसर आ जाएगा 0.11 डिवाइड बाई 1.03। तो इसको सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम आउटसाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करो थोड़ा कैलकुलेटर यूज करो 0.106 आएगा। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर। अगर परसेंटेज पूछा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर पूछा तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.106 इंटू 100 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 10.6% ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज आउटसाइड द सी वाटर। इस तरह से सॉल्व करना। पहले हमने गिवन डाटा लिखा, उसके बाद हमने फार्मूला बना लिया वॉल्यूम इनसाइड, उसके बाद वॉल्यूम आउटसाइड का डायरेक्ट फार्मूला भी आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम आउटसाइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 1 माइनस दैट इज रो बाई सिग्मा भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते एग्जाम में, शॉर्टकट। ओके टाइम कम रहता है, डायरेक्टली फार्मूला आपको समझ में आना बोल के आई मेड फार्मूला फर्स्ट, उसके बाद मैंने V0/V कर लिया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया। पहला मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, वो एक्चुअली 1.03 है, राइट। इस तरह से आपका आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में 0.106 है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन दिया गया है, परसेंटेज दिया तो 10.6 देगा। तो दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम। क्या दिया देखो, ये बलून, आप एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करो, कुछ इस तरह से एक बलून है, राइट, एक बलून है लाइक दिस, ओके। ये बलून के अंदर यहाँ पे जाए कुछ है, समझो इट इज़ गोइंग अप, राइट। एक बलून है, बलून का वॉल्यूम कितना है, चलो गिवन डाटा लिखो, सिचुएशन को समझो, उसके बाद प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगा। 200,000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम SI यूनिट में दिया, देखो वॉल्यूम इज गिवन इन SI यूनिट। इट इज़ फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस, अंदर कौन सा गैस है, अंदर हाइड्रोजन गैस है, बाहर एयर रहेगा, दिस इज H2 गैस, बाहर क्या रहेगा एयर। तो यहाँ फ्लूइड क्या है, एयर इज द फ्लूइड। जैसा बॉडी को आपने वाटर में फेंक दिया, वाटर इज ए फ्लूइड, तो यहाँ पे एयर फ्लूइड है, ओके। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या दिया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या दिया 0.09 ग्राम पर लीटर। याद रखो आप 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में आप 1000 मीटर क्यूब ये हो जाएगा, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके एक दो कैंसिल होके 1 ग्राम पर लीटर इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ओके। उसके बाद इफ़ द डेंसिटी ऑफ एयर इज, डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया, ओके। ये फ्लूइड का डेंसिटी ले लो आप, राइट, ये फ्लूइड का डेंसिटी लो, मैं जैसे कि सिग्मा लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर इज, तो क्या है 1.29
1.29 ग्राम पर लीटर, राइट। इट कैन लिफ्ट अ टोटल वेट ऑफ, तो ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे इसको एक वेट लगा दिया आपने, यहाँ पे इसको एक वेट हैंग कर दिया, एक्स्ट्रा वेट बाहर का। ये कितना वेट को ऊपर लेके जाएगा, कितना वेट, मिनिमम वेट को ये ऊपर लेके जाएगा। सर ये ऊपर क्यों लेके जाएगा, देखो पहला इसका हाइड्रोजन गैस का वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसी के ऊपर एक अपथ्रस्ट अपवर्ड एक्ट होगा। जैसा फ्लूइड का अपथ्रस्ट रहता ना, पानी में आप गिरोगे तो पानी आपको अपथ्रस्ट देगा, वैसा ही हवा में किसी बलून को फेंक दो तो बलून को एक अपथ्रस्ट मिलेगा ना, तो इसको एक अपथ्रस्ट मिलेगा, तो ये बलून क्या होगा, ऊपर जाएगा, राइट। वो ऊपर बलून जाते वक्त कितना वेट को ये ऊपर लेके जा सकता है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। वेरी सिंपल, ये भी एक फ्लोटेशन का केस रहेगा। देखो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, दिस इज द फॉर्मूला। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट बोले तो अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है आप चेक कर लो, नेट डाउनवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अपथ्रस्ट बोले तो ये जो एयर का अपथ्रस्ट रहेगा, क्या क्या आप ऐड करोगे इसमें, अपथ्रस्ट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द एयर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और नेट डाउनवर्ड फोर्स में वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस वन, दैट इज वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का, और डेंसिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस का वेट एक नीचे एक्ट हो रहा है, और ये जो वेट आपने एक्स्ट्रा किया ना इसका एक वेट नीचे एक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो है, दिस इज m इंटू जी, अंडरस्टूड। एक हाइड्रोजन बलून का बलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, उसका वेट भी नीचे एक्ट हो रहा है, उसके साथ वो बलून को आपने एक एक्स्ट्रा वेट हैंग किया है और वो वेट भी नीचे एक्ट हो रहा है, और ये दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है। तो अपथ्रस्ट इज डूइंग वर्क टू लिफ्ट बोथ द बॉडी अपवर्ड, इसका मतलब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो इस सिचुएशन डाल के आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देखो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या है, ये देखो 2000 है, 2000, सिग्मा क्या है, दिस इज 1.29, क्योंकि 1 ग्राम लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट किया तो भी सेम वैल्यू आएगा। ए जी सभी जी कैंसिल हो जाएगा, ऑल जी कैंसिल्स बिकॉज दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। तो ये भी क्या होगा सेम 2000, ये क्या है 0.09 प्लस ये यम पता नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो आपको आंसर आ जाएगा, यम आपका आंसर आ जाएगा 2400 kg वेट वो लिफ्ट करेगा। इसको सॉल्व करो आपको आंसर मिलेगा। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन, क्या पूछा इस क्वेश्चन में देखिए आप सब। ए सॉलिड सेल, एक सॉलिड शेल है, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर, इसको पानी में डुबाने के बाद वेट लॉस कब होगा, व्हेन बॉडी सिंक्स इन वाटर इट लूजेस इट्स वेट, अपरेंट वेट आएगा वहाँ पे, अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। सो बॉडी लूजेस इट्स वेट, हाफ ऑफ वेट वो लूज कर रहा है। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, पहला आप गिवन क्वांटिटी लिखो, सोल्यूशन में पहला गिवन क्वांटिटी कभी भी दिखना चाहिए। देखो ए सॉलिड सेल लूजेस हाफ ऑफ इट्स वाटर, हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर, तो इसका मतलब आप एक बात याद रख दो, वेट लॉस कितना है, वेट लॉस कितना है, लॉस इन वेट कितना है, हाफ वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्टली आप पहले लिख दो। उसके बाद इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सेल इज 5, रिलेटिव डेंसिटी मैं आपको दिखाया था, देखो रिलेटिव डेंसिटी बोल के मैं आपको पढ़ाया था। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो, आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सॉरी डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, यही रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 5 है, डेंसिटी ऑफ बॉडी पता नहीं, ओके। तो ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी दैट इज, और ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज हॉलो, दैट ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज हॉलो। तो कितना, यानी कि वो जो स्फेरिकल सेल है ना उसमें एक कैविटी है, थोड़ा मास है बचे सो कैविटी है, तो इसका मतलब उसका टोटल वेट में जो हम वॉल्यूम लिखते हैं ना, ये वेट को आपने वॉल्यूम में लिखे तो कैसे लिखोगे आप, दिस वेट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे। ये जो वॉल्यूम लिखते वक्त आपको क्या लिखना है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू, याद रखो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी माइनस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी लिखना है।
क्योंकि इसमें एक कैविटी है, इसमें टोटल वैल्यूम में क्या है, एक कैविटी है। दिस इज रो जी डिवाइडेड बाई 2। सर आपने ये माइनस क्यों किया? आपने माइनस क्यों किया बोले तो वो जो स्फेरिकल सेल है ना, वो जो स्फेरिकल सेल है ना, वो सेल में एक कैविटी है, खाली जगह है, उसका वैल्यूम Vc है। ये बच्चा से सॉलिड सेल है लाइक दिस, तो उसका वैल्यूम कितना है, V है। तो टोटल वैल्यूम कितना हो गया, V प्लस Vc हो गया टोटल वैल्यूम। तो सॉरी टोटल वैल्यूम में अगर आपने वेट कैलकुलेट करते वक्त इतना ही पोर्शन वेट को कंट्रीब्यूट करेगा, ये तो खाली जगह है ना, इसीलिए टोटल वेट लिखते वक्त टोटल वैल्यूम में वैल्यूम ऑफ कैविटी को माइनस करना, टोटल वैल्यूम में वैल्यूम ऑफ कैविटी को माइनस करना। तो इस तरह से करने से आपको वेट मिल जाएगा। पूरा बॉडी का वैल्यूम पकड़ोगे तो वैल्यूम में तो थोड़ा खाली जगह है, वो खाली जगह का जितना वैल्यूम है उतना वैल्यूम को आपको निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए V माइनस वी सी इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 तो वो हाफ वेट, बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर बोल के दिया है ना, उसका हाफ है ये रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका मतलब ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो अब आगे फॉर्मूला क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वैल्यूम इज हैलो, ये Vc आपको कैलकुलेट करने का है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस Vc। ओके, वैल्यूम ऑफ कैविटी आपको कैलकुलेट, खाली जगह कितना है उतना आपको कैलकुलेट करने का है। देखो ये बॉडी पूरा अंदर सिंक हो गया, जो बॉडी अंदर डूब गया तो आप कैसे लिखोगे, व्हाट इज द हाफ ऑफ, इट इज लूजिंग हाफ ऑफ इट्स वेट, तो वेट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट रहेगा, बिकॉज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो इसीलिए वेट लॉस्ट बाय द बॉडी, वेट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑफ वाटर। तो वेट लॉस्ट क्या है, V माइनस Vc, जो मैंने ऊपर लिखा रो G। ओके, ये रो का वैल्यू भी आप लिख देना, ये देखो ये रो का वैल्यू भी आप लिख देना, ये देखो V माइनस Vc, रो क्या है, दिस रो इज 5। ये देखो ये रो का वैल्यू यहाँ पे एक स्टेप लिख दो आप, राइट, रो G। अपथ्रस्ट क्या है, देखो अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द वाटर, इसका मतलब दैट वैल्यूम, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द अपथ्रस्ट, राइट। अपथ्रस्ट में बॉडी पूरा सिंक हो गया तो टोटल वैल्यूम लेना पड़ेगा, उसमें वैल्यूम ऑफ द कैविटी आप नहीं ले सकते, टोटल वैल्यूम लेना पड़ेगा। तो ये जी कैंसल, तो आप लिख दो V माइनस Vc इंटू ये क्या, ये देखो डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखा, देखो मैंने, डोंट डू दिस, राइट, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। इसको हम शायद थोड़ा एक कट करके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बोर्ड का जगह कम गिर रहा है। देखो अभी क्या है, V माइनस Vc डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये रो की जगह पे आप क्या लिखोगे, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 5 सिग्मा इज इक्वल टू, उधर आगे क्या बचा, V इंटू सिग्मा। ये देखो ये V माइनस Vc ये भी, ये देखो ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो क्या बचा, ये उधर गया तो ये हो गया 2/5V, ये क्या बचा, V माइनस Vc। आपको Vc चाहिए तो Vc एक तरफ रख दो, ये उधर लेके जाओ, वो उधर लेके आओ, तो V माइनस 2/5V हो जाए, क्योंकि ये इधर गया और ये इधर आया, तो Vc आपको कैलकुलेट करना है ना। तो 5 आप एलसीएम ले लो, तो ये 5 एलसीएम ले जाए तो ये 5V हो जाएगा, 5V माइनस ये क्या हो जाएगा 2V, तो आपका आंसर आ जाएगा 3V/5। वाट फ्रैक्शन बोल के पूछा तो इसीलिए Vc/V कर दो, जो कैविटी है और जो टोटल वैल्यूम है उसको डिवाइड कर दो, Vc/V इज इक्वल टू 3/5 इज योर आंसर, 3/5 इज योर आंसर। लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So let us take the 5th question। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें, बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा। 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, 2 लिक्विड है जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे एक लिक्विड है, राइट, पहले डायग्राम ड्रा करो, और एक ऊपर एक लिक्विड है, ये दोनों मिक्स नहीं होते। सो दिस इज द कंटेनर विच कैरी द लिक्विड, राइट। ऐसा ऊपर एक लिक्विड है, नीचे एक लिक्विड है, राइट। ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, ये देखो इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी एन रो है। विथ एन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये डेंसर है, ये रेयर है, इसलिए वो नीचे है।
इसका डेंसिटी रो है, एन रो है। अब रो हम डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेते थे अब तक थ्योरी में, लेकिन यहाँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो दिया तो हमें ऐसे ही लेके सॉल्व करना चाहिए। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, इसका भी हाइट एच है और इसका भी हाइट एच है। ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन दिस कंटेनर। एक सॉलिड सिलेंडर लिया इस तरह से, इसका जो डेंसिटी है डी है और इसका जो लेंथ है एल है, इसका लेंथ कितना है एल है, इसको इसमें डुबा दिया, डाल दिया इसमें, तो क्या होगा, द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। सिलेंडर इस तरह से फ्लोट हो रहा विथ इट एक्सिस वर्टिकल, इस तरह से फ्लोट हो रहा सिलेंडर, ये उसका एक्सिस है सिलेंडर का, राइट। और आगे दिया एंड लेंथ पी एल इन डेंसर लिक्विड, ये डेंसर लिक्विड है ना नीचे, तो इसका अंदर लेंथ कितना है पी एल, ये अंदर है, राइट। चलो तो क्या होगा यहाँ पे, कहाँ तक पढ़े हम, द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ पी एल इन द डेंसर लिक्विड, तो ये अंदर पी एल है। टोटल लेंथ कितना है इसका, सर टोटल लेंथ इसका एल है। अगर पी एल अंदर है तो बाहर कितना रहेगा 1 माइनस पी इंटू एल, क्योंकि टोटल एल है, अगर अंदर पी एल है तो ऐसा किया एल कॉमन आया तो 1 माइनस पी इंटू एल, तो यहाँ लेंथ माइनस पी एल हो गया, यहाँ पी एल हो गया। पूछा द डेंसिटी डी इज इक्वल टू, ये जो सिलेंडर का डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी आपको कैलकुलेट करने का है। ये फ्लोट कैसा हो रहा बोले तो ये लिक्विड में इसका एक पोर्शन है और ये लिक्विड में इसका एक पोर्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे फ्लोटिंग केस में, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट बोल के करोगे आप फ्लोटिंग केस में, लेकिन यहाँ दो मिक्सचर्स है इसलिए दो अपथ्रस्ट आएंगे, तो इसीलिए यहाँ वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट 1 दैट इज ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस अपथ्रस्ट 2 दैट इज ड्यू टू सेकेंड लिक्विड आपको यूज करना चाहिए, अपथ्रस्ट 2 एंड अपथ्रस्ट 1 दिस यू हैव टू यूज। तो वेट ऑफ द बॉडी आपको कैसा कैलकुलेट करने का है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इसको मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ द बॉडी लिखूंगा, लेंथ इंटू एरिया, दिस इज वॉल्यूम, एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड। आप चाहे तो इसका अपथ्रस्ट लिख दो, इसका वॉल्यूम अपथ्रस्ट क्या रहेगा, अपथ्रस्ट कैसे रहेगा, वॉल्यूम इनसाइड, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम इनसाइड कितना है, ये देखो लेंथ इंटू एरिया, लेकिन कितना लेंथ है अंदर, ये फर्स्ट का 1 माइनस पी एल, ये देखो 1 माइनस पी एल, ये लेंथ ये एरिया, ये वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, ये रो है, ये रो है, ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस इसका क्या होगा, लेंथ कितना है पी एल, देखो लेंथ इंटू एरिया, ये होगा वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम इनसाइड दिस सेकेंड लिक्विड, इसका डेंसिटी कितना है एन रो, ये देखो जी, जी सब में है इसीलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, सब में जी है इसीलिए कैंसिल, तो क्या बचा, देखो एल ए भी सब में है तो एल ए भी कैंसिल डायरेक्टली कर दो, तो इधर बचा डी, इधर बचा 1 माइनस पी इंटू रो प्लस इधर बचा एन पी भी है ना, एन पी और ये रो। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो और जो ऑप्शन दिया ऑप्शन के साथ मैच कर दो, रो माइनस रो पी प्लस एन रो पी, ये देखो डी इज इक्वल टू रो माइनस ये रो पी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये रो पी तो क्या आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू रो आ जाएगा, ये देखो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो एक काम कर दो आप, ये देखो ये पहला लिख दो रो प्लस देखो एन रो पी माइनस रो पी, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू, ये देखो डी इज इक्वल टू, ये रो है यहाँ एन रो कॉमन ले, देखो रो पी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू रो पी, दिस इज द आंसर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इस तरह से यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। आप चाहे तो रो भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में रो भी है, डी इज इक्वल टू रो इंटू ब्रैकेट, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू पी, अब ऐसे भी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। सो इस आंसर को आप आंसर से मैच करना और ऑप्शन में आप टिक करना, तो कुछ भी नहीं है, दो लिक्विड है तो दो अपथ्रस्ट एक्ट होंगे, अपथ्रस्ट ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड, अपथ्रस्ट टू सेकेंड लिक्विड, इसमें वॉल्यूम ये देखो ये लेंथ इंटू ये बॉडी का एरिया, ये एरिया इंटू लेंथ लिया, इसलिए ये लेंथ ये एरिया लिया, देखो ये लेंथ ये एरिया और डेंसिटी जी, और सेकेंड केस में
पी एल लेंथ, एरिया ए, डेंसिटी एन रो। ये देखो लेंथ, एरिया, डेंसिटी एन रो जी। इस तरह से हमने करके प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप भी ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है।